Hello guys, today we have Saurav sir with us and we are going to discuss about very important topic today. And being a professional as well as a tech entrepreneur, Saurav sir has been uh, evaluating and mentoring many people around India, and he's one of the people whom I admire to be like, and he's such a good personality in person whom I have actually met, and he's such a simple person and gives us the best advices and the correct advices. So hello Saurav sir, how are you doing I today? I'm fine. Guys, today we are going to discuss about a few major topics that are leading in the tech industry currently. So one will be regarding blockchain, other will be regarding the tech culture in India, and the third one will be cryptocurrency, how it is useful, and is it really useful for a beginner to get introduced to, or is it something that will uh, keep on booming as other major topics in tech like machine learning and AI. So after this, we are going to keep in touch about a very crucial topic about startup and advice that Saurav sir would like to give you if you are planning your own startup, or is it someone else's startup where you are actually working at. So, Saurav sir, first we are going to discuss about the blockchain theme. So, as we all know that you have been a crucial part and a major part of Paytm, and you know how monetary system actually works. But monetary system actually requires a high profile security because transactions are not very easy to implement. But if we talk about today's scenario, blockchain is something that many people and organizations are starting to implement. But do you really think that blockchain is something that is really going to change the world, or is it something that is going to be implemented on each and every security platform? I think blockchain is a useful technology. Somehow, I'm not able to understand the hype around it. It's obviously a good new kind of a technology, which I feel that is required in many situations. Obviously, from a computer network point of view, it's a relatively secure technology and relatively scalable. So it has a lot of uses which I think would change the world. But there is also a lot of hype around it. Many startups I have seen, like once I was in a startup pitching competition, one startup was doing something like makemytrip.com, but it was saying we are using blockchain. So one of Mhm, the investors asked, what is the need of blockchain in this? So I mhm, think there is a lot of hype. So if you remove the hype, there is obviously utility, but it's mhm, not something which I personally feel it will be one of the changes, like one of the big change maker technologies in next 10 years. But it okay. would not be the only big change maker technology. Like some of the fans of blockchain somehow make it as big as internet or something like that. So I Mhm, personally may be wrong. Obviously, it's recorded. Maybe after 10 years, people say आप गलत थे. But I personally feel कि it's a game-changing technology. But uh, to compare it with, say, internet, I would say would be very dramatic. But like obviously, cloud computing, for example, has changed the world, and correct, sir. mobile computing has changed the world. So in that sense, obviously, blockchain can do a lot of things. But Mhm. I still feel that right now, like it will take a little time for things to come. Right now, it's like a little too early in the blockchain world. Okay. Yeah, I very well agree with you, also. So, similar to this, I think that it's the generation that is creating this boom. Don't you think? Because whenever a new technical term or a tech stack has been introduced,
if we take an example of a programming language, comparing Java and Python, you will agree that Python has a lot of computational power as compared to Java. But most of the use cases that are being implemented using Python have been implemented because of this boom. And similar to this, blockchain is one of them. But if we talk about the startup culture in India or anywhere in the world, people are actually getting motivated by these booms and the new technological terms, which are actually creating the new type of ecosystem, wherein people are not giving actual importance to what is to be created. They're actually creating importance to what is to be used to create something. Like if I was there at a hackathon wherein people were discussing about blockchain, and there was a major topic on which a solution was to be provided based on blockchain. So you must also have experienced something. So there is a lot of hype around a lot of technologies, not just blockchain. So I personally feel कि youngsters obviously get motivated by world will change and everything would happen. तो मैं अपना ही for example and I अगर मैं अपनी थोड़ी सी story बताऊं तो I was also 21 when I came to know about mobile computing and I thought mobile apps would change the world. Obviously change तो किया ही है world को, but Right. story was a little interesting and I think वो होता वही है कि things happen, but वो जब पूरा process होता है वो you are not able to envisage that. तो आप Yes, sir. तो व्हेन आई स्टार्टेड इन 2002 डूइंग मोबाइल एप्स तो यही था दुनिया चेंज हो जाएगी, वो दुनिया हुई भी चेंज पर दुनिया बहुत स्लो चेंज हुई. तो वर्ल्ड एक्चुअली स्टार्टेड चेंजिंग व्हेन आफ्टर आईफोन. तो मैं आई वाज वेरी गुड इन डेवलपिंग एप्स फॉर नोकिया फोन्स. अनफॉर्चुनेटली Okay. नोकिया फोन्स तक द बिजनेस मॉडल वाज नॉट देयर. तो वो ऐप्स बनाते थे, रिलायंस को देते थे पर कुछ खास कमाई होती नहीं थी, टाटा टेली सर्विसेज को देते थे तो कुछ खास कमाई होती नहीं थी. तो आई वाज डायरेक्ट Okay. सप्लायर ऑफ गेम्स एंड एप्स टू टाटा टेली सर्विसेज एंड रिलायंस, बट वो गेम और ऐप से कुछ खास कमाई नहीं हो रही थी. तो आई वुड से टेक्नोलॉजी से प्रभावित होके सी वो क्या होता है मीडिया. एंड नाउ सिंस आई हैव बीन इन पेटीएम एंड थोड़ा वो मीडिया इकोसिस्टम पूरा देखा, आई हैव लॉट ऑफ फ्रेंड्स इन मीडिया. तो पहले से मतलब इवन बिफोर पेटीएम काफ़ी फ्रेंड्स मेरे मीडिया में हैं, तो आई नो. तो और थोड़ा क्या है कि ग्लैमर इन जनरल भी है, इट्स नॉट जस्ट मीडिया. हर आदमी को एलोन मस्क आजकल हर आदमी का Right. रोल मॉडल है. तो I ऑब्वियसली completely agree. एक वो ग्लैमर है. बट अब अनफॉर्चुनेटली ये होता है कि एवरीबडी इज नॉट एलोन मस्क, आई कैन से. तो अब उसमें क्या Correct. प्रॉब्लम होती है कि इफ़ यू सी मोस्ट ऑफ द लार्ज इंडियन टेक स्टार्टअप्स, उसमें आपको इंटरेस्टिंग बड़ा जान के इंटरेस्टिंग लगेगा कि ज़्यादातर सब इंटरनेट मोबाइल कंप्यूटिंग तो यूज़ करते हैं, बट एंड दे आर प्रोवाइडिंग अ सर्विस, दे आर प्रोवाइडिंग अ यूटिलिटी. बट Right, sir. अब वो एलोन मस्क जैसे सपना दिखाते हैं ऐसा तो कुछ कर नहीं रहा कोई भी इंडिया में. कोई भी यूनिकॉर्न आप देख लो उठा Correct. के. Correct, sir. किसी का भी नाम ले लो, मतलब आई कैन टेक नेम्स. जो पहले 10 यूनिकॉर्न है उनमें से बहुत कम है जो टेक्नोलॉजिकली कुछ एलोन मस्क टाइप का कर रहे हैं. बट ये सिर्फ इंडिया का नहीं है, आप बाहर भी ले लो. स्ट्राइप की वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा है, ऊबर की वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा है. Yes. Yes, sir. अब ऊबर और स्ट्राइप की वैल्यूएशन के बावजूद भी वो कुछ ऐसा ग्लैमरस तो कर नहीं रहे जो एलोन मस्क जैसा ग्लैमर है. दूसरा, Correct, sir. एलोन मस्क इंक्लूडिंग अगर आप देखो अमेरिका के अंदर तो सबसे बुरा हाल पूरी दुनिया में कोरोना में अमेरिका का ही है. मतलब हाँ. मतलब मैंने ये अप्रैल में कहा था, उसके पोस्ट के 20 लाख व्यूज हुए थे ऑन लिंक्डइन. Okay. Okay. तो मैंने कहा था कि इट इज सरप्राइजिंग कि इंडिया इज फेयरिंग बेटर देन अमेरिका. एंड पीपल सेड नहीं इंडिया का बुरा हाल होगा, काफ़ी सारे कमेंट्स वगैरह आए थे. बट अब 8-9 महीने के बाद भी आई कैन से इंडिया इज एटलीस्ट फेयरिंग बेटर देन अमेरिका. तो मतलब तो कई बार दुख भी होता है. खैर ऑब्वियसली अमेरिका वाले थोड़ा सा बेटर बिहेव करते तो कम प्रॉब्लम होती वहाँ. फॉर्चुनेटली इंडिया के केस में आई वुड से थोड़ा मास्क वगैरह पीपल हैव स्टार्टेड वियरिंग, तो दैट इज हेल्पिंग. तो आई वुड से कि टेक्नोलॉजी के जोश में आके, जैसे आप यूएस का बड़ा क्लियर एग्जांपल है ना, तो मेरा जो एग्जैक्ट मैसेज था लिंक्डइन पे, इट वाज कि उबर वाज हैविंग फ्लाइंग कार्स, गूगल वाज हैविंग क्वांटम कंप्यूटिंग एंड एलोन मस्क वाज गोइंग टू मार्स. बट हाल हाल फिलहाल प्रॉब्लम तो धरती पे है ना.
तो मेरा ये राइट सर, मानना है वो करेक्ट। J2M जब मैं मोबाइल ऐप्स बनाता था 2002 में, 3 में, 4 में, कोई डिमांड ही नहीं थी। मैंने ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट खोल लिया एक मोबाइल ऐप्स बनाने का 2004 में, कोई आता ही नहीं था पढ़ने, क्योंकि वो कोई ओके। डिमांड ही नहीं थी। तो व्हाट आई एम सेइंग इज कि जैसे ब्लॉकचेन है, एआई तो फिर भी आई वुड से कि पुरानी टेक्नोलॉजी है जो बार बार आती रहती है, बट करेक्ट। ब्लॉकचेन इज ऑब्वियसली टोटली न्यू थिंग इन लास्ट 10 इयर्स विच हैज कम। अगले 10 साल ज्यादा होगी, बट वो होता क्या है कि मतलब टेक्नोलॉजी एक ग्लैमर होता है, टेक्नोलॉजी ओरिजिनल एक यूजफुल टेक्नोलॉजी होती है। तो एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, सीरम इंस्टीट्यूट जो वैक्सीन बना रहा है, इंडिया में मैन्युफैक्चर कर रहा है, अब वो कोई आप उसको आप गूगल के इक्विवेलेंट तो मानते नहीं थे, उसको आप एलॉन मस्क के इक्विवेलेंट तो मानते नहीं, आज भी नहीं मानते। इवन आफ्टर टुडे इज द फर्स्ट डे इंडिया में वैक्सीन आ रही है जब हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। तो अब आई डोंट करेक्ट नो सर। क्या होगा उस वैक्सीन से, अच्छी होगी बुरी होगी आई डोंट नो, बट आज हम मार्स पे जाने वाले रॉकेट को ज्यादा मानते हैं ना, उस 250 रुपए की वैक्सीन जो सीरम इंस्टीट्यूट बना रहा है उसको ज्यादा नहीं मानते, आज भी नहीं मानते। बट Yeah, जस्ट it's because of the boom, and the हाँ, तो मेरा mentality. पॉइंट ये है कि डोंट गेट ग्लैमराइज्ड बाय टेक्नोलॉजी, ट्राई टू अंडरस्टैंड कि हर चीज की अलग नीड होती है। तो गूगल का अभी मैं कहीं पढ़ रहा था, गूगल का शेयर हैज इंक्रीज्ड मेनी फोल्ड्स इन लास्ट 20 इयर्स, बट डोमिनोज पिज्जा का शेयर उससे भी ज्यादा बढ़ा है। तो Okay. मैं समझाने की जो कोशिश कर रहा हूँ, ये समझाना थोड़ा मुश्किल हो, तो अब मैं वो जो कोशिश कर रहा हूँ समझाने की वो ये कर रहा हूँ कि वो 10 साल में मेरे को भी समझ आया कि जो हिट कंपनीज हैं दे मे नॉट बी हिट ड्यू टू टेक्नोलॉजी, मतलब टेक्नोलॉजी इज जस्ट अ मीडियम। Right. वो आपको जरूरी नहीं है कि आपको, अगर मैं आपको थोड़ा क्रिकेट वाली भाषा में समझाऊं तो राहुल द्रविड़ बहुत अच्छा खेलते थे, बिल्कुल क्लासिक स्टाइल से खेलते थे ना, बट आपने कई बार देखा होगा क्रिश श्रीकांत को या महेंद्र सिंह धोनी को वो टेढ़े मेढ़े कहीं भी शॉट मार देते थे, चौके छक्के मार के कई बार मैच जीता है। धोनी को तो हमें ध्यान ही है कितने मैच उसने ऐसे जीते हैं। तो व्हाट आई एम Right, सेइंग sir. इज कि बेसिकली वी शुड नॉट गेट एडिक्टेड टू ग्लैमराइज टेक्नोलॉजीज, वी शुड फोकस ऑन द यूटिलिटी। कई बार वो 250 रुपए की वैक्सीन आपके मार्स के रॉकेट से ज्यादा यूटिलिटी देता है। I तो totally agree, sir. यू हैव टू फोकस ऑन द यूटिलिटी। अब उसमें यूटिलिटी, एक एग्जांपल मैं एजुकेशन का देता हूँ, तो मे बी ये यूटिलिटी नॉर्मल स्मार्टफोन जो 5,000 रुपए का आ रहा है वो हो सकता है ज़्यादा यूटिलिटी दे देन मे बी 3D ग्लासेस, बिकॉज 3D ग्लासेस अगर आप बना भी दोगे उस पर बेस्ट एजुकेशनल मटेरियल, तो 100 करोड़ इंडियंस वुड ओनली गेट 3D ग्लासेस से। अगर मोबाइल फोन आने में 20 साल लग गए तो 2040 में 3D ग्लासेस होंगे इंडियंस के पास, जस्ट Correct. स्टिकली स्पीकिंग। तो कई बार क्या होता है कि यू हैव टू गो टुवर्ड्स द लेसर टेक्नोलॉजी, जो आजकल के यंगस्टर्स के साथ मैंने देखा एक प्रॉब्लम है। Right, sir. मतलब आई वॉज ऑल्सो हैविंग सेम ओपिनियन, मतलब मैं भी अगर आज से 20 साल पहले मेरे से बात करते तो मैं भी ये कहता नहीं हाईफाई टेक्नोलॉजी की तरफ जाना चाहिए, उस जमाने में जो मोबाइल टेक्नोलॉजी थी। बट इतने साल में मैंने ये देखा है कि हाईफाई टेक्नोलॉजी टेक्स इट्स ओन टाइम टू कम। अब वो 2 साल हो सकते हैं, 5 साल हो सकते हैं, 10 साल हो सकते हैं, इट कैन टेक टाइम। Right, sir. दूसरा, कोविड हैज क्लियरली शोन कि कई बार एक छोटा सा मास्क पूरे उससे बहुत बेटर हो सकता है, जो आप मतलब वैक्सीन से बेटर मास्क है, क्योंकि ऑब्वियसली वैक्सीन आने में टाइम लगता है, वैक्सीन के लॉजिस्टिक्स हैं, मास्क इज रिलेटिवली इजी। आपने देखा होगा इंडिया के अंदर बिहार में बहुत कम केसेस हुए हैं, लोग गमछा पहन के घूमते रहते हैं, उससे ही बहुत कम हुए केस। अब दैट वाज सरप्राइजिंग, काफी लोग कहेंगे नहीं वहाँ टेस्टिंग कम हुई, बट 1 लाख टेस्टिंग रोज होती है, तो इट्स नॉट कि अगर 1 लाख में 250 आ रहे हैं तो प्रोपोर्शनेटली तो कम है ही ना। तो व्हाट आई एम Right, sir. सेइंग इज Correct. कि एट द एंड ऑफ द डे यू हैव टू बी वेरी फोकस्ड ऑन कि आपकी टेक्नोलॉजी की यूटिलिटी क्या है और उसका एक लाइफ साइकिल क्या है। एंड उसके लिए मैं एक टर्म जो सबको बताना चाहूंगा, एक गार्टनर हाइप साइकिल एक टूल है, आप उसको सर्च करिए। गार्टनर हाइप साइकिल जो टूल है, दैट क्लियरली टेल्स कि हर टेक्नोलॉजी का एक हाइप होता है, फिर वो हाइप के बाद पीपल गेट डिसइल्यूजन, देन उसके बाद एक प्लेटो आता है जहाँ पर प्रोडक्टिविटी आती है उस टेक्नोलॉजी, और ये हर एक के साथ होता है। तो चाहे वो ब्लॉकचेन हो चाहे कुछ और हो, हमेशा पहले हाइप होगी, उसके बाद थोड़े दिन के बाद लोग कहेंगे बेकार टेक्नोलॉजी, ऐसे तो कुछ होता ही नहीं है, एंड देन वो बीच आता Yes. है। इंटरनेट में देखो एग्जैक्ट ये हुआ था, 95 to 2000 hundreds of companies came, I was just reading Sun Microsystems की वैल्यूएशन $300 बिलियन थी सन 2000 के आसपास। Okay. अब आप ये Okay. सोचो, आज फेसबुक की वैल्यूएशन $600 बिलियन या $700 बिलियन है, तो हमें लगता है बहुत ज्यादा है, पर उस जमाने में सन की वैल्यूएशन $300 बिलियन बहुत भी ज्यादा. थी।
और इंटरनेट सब बहुत कुछ हुआ ज्यादा ही था ना, मतलब सन 2000 में आई रिमेम्बर आई गॉट अ 64 kbps लाइन, डीएसएल लाइन इंस्टॉल्ड। तो मैं पूरे मोहल्ले में पहला आदमी था जिसके पास वो ओके 64 kbps का तेज कनेक्शन था। मतलब आज हंसी सी आती है, 2G कहते हैं मेरा बेटा तो 64 kbps को। तो ओके आप ये सोचो वो उस समय हाईएस्ट स्पीड थी। दैट वाज एन अचीवमेंट एक्चुअली एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। बहुत बहुत बड़ी बात होती थी ये, जो ये आप एक्सपीरियंस कर सकते हो। हमारी जनरेशन या हमसे जो अब करंट जनरेशन आ रही है वो ये एक्सपीरियंस नहीं कर सकती सर। नहीं, आई उसको टोटली अलग एग्री। एक्सपीरियंस होंगे, उसके लिए 10 MBPS का कनेक्शन भी वो बेकार ही होता है। मेरा बेटा कहता है 10 MBPS कुछ नहीं है।